Okay, so welcome to a new topic. I think last time we have finished moment distribution method. I'm taking a small topic before we go for slope deflection method. It's called influence line diagrams. Influence line, okay, diagrams. Influence line diagrams first I am taking before slope deflection. Okay, it's a small topic and we can finish it quickly. First of all, what is influence line diagram and why we are going to need it? Suppose that you have a beam like this. Okay, this is suppose your pin joint and this is suppose your roller. Many a times it happens that suppose you are analyzing a bridge. Okay, you are analyzing a bridge. In bridge what happens, you have moving load. Okay, suppose this is your bridge here. Okay, and you are going to have a moving load. Some bus is moving on this bridge, so you have some sort of dynamic moving load. This load is going to move all around the span. Okay, so there is a need to understand how your stress parameters means what? Stress parameters means your shear moment. Okay, these factors are varying across your section as this load is moving on your span. Suppose I am taking a point C. So by influence line diagram, what I want to see is the variation. Okay, variation of stress parameters. Stress parameters means nothing but your shear force and moment across, okay, or rather at some section, okay, at some section as the load moves along the span. Okay, as this red load will move from here all the way to here, how the shear force and moment are going to vary at any section. Okay, that is the objective of your influence line diagram. Okay, there are two ways in which we can draw ILD, influence line diagram. One method is your standard method. Okay, standard method which almost we will never use. Okay, we will never use standard method. Okay, other method that we are going to follow is your Muller-Breslau principle. Ignore the spelling. Okay, Muller-Breslau principle. This is what we are going to follow in objective as well as in subjective. Muller-Breslau principle, you can very simply draw the ILD of any beam. Okay, first of all, even though we are not going to use it, I am going to give you a hint on how to solve ILD using standard method. Okay, don't pay any attention because we are not going to use this method. Okay, just for the sake of telling, I'm going to show you how to use standard method. Standard method means that suppose there is this point C is here. Okay, what I want you to do is draw the ILD of this beam. Okay, draw ILD of shear and moment at point C, or include reaction also, reaction at A. Okay, so you have to draw influence line diagram for what? Reaction at A, shear at C and moment at C by standard method. Okay, we are not talking about Muller-Breslau. I am showing you how you can do it with the help of standard method. ILD means that your load is moving from this point A to this point B. So what you do, you apply some unit load at some general section at distance x. Okay, if the whole length is suppose L, okay, this length from here to here is going to be L minus x. Can you tell me the reactions? What is the reaction at RA? Is it L minus x upon L? Okay, and at B the reaction is x upon L. Can you tell me? Okay, so this is your reaction at A. Okay, now I can say one thing, that RA is equal to L minus x upon A when x is equal to, suppose that this C section is located at a distance A. Whenever x is less than equal to A, your reaction at A is nothing but L minus x upon L. You can write that. Now suppose
okay, let's do shear and moment also together. Okay, let's talk about shear at C. How much is the shear at C? This point, what is the shear if your one is acting at this section? Okay, draw the free body diagram from right, it will be easier. This is your x by L, this is your point C. So here you will get something like this. On right section in downward direction, I think you will take it as negative. So it is minus x by L if your x is less than equal to A. Let's talk about moment at C. Moment at C. Okay, what will be the moment here? You can directly calculate from here. This distance is nothing but L minus, okay, rather it is how do I write this? L minus A I can write, right? This distance is L minus A. Okay, so this distance is your L minus A. So here you can write that your moment is going to be something like that, that is positive. Okay, so x by L into L minus A. When x is less than, okay, where do I write this? Okay, when x is less than equal to A. Is it okay? Let's talk about the case when your x is greater than equal to A. Okay, suppose your x is acting ahead of this C point, somewhere here it is acting. Okay, now this is your x, okay, and this L minus x will be this value now. Okay, rest is the same. Okay, now can you tell me what is the reaction here? Reaction is remaining same, isn't it? It is L minus x upon L only, even if your x is greater than equal to A. Okay, what about your shear? Okay, what about your shear? Now you draw your free body diagram from the left. Okay, it will be easier. This is your point C. This reaction is L minus x upon L. So here you will get your reaction as L minus x upon L. Okay, so here you are getting L minus x upon L shear force when x is greater than equal to A. What about your moment? Your moment will come out to be something like this, and this value here is going to be L minus x upon L into A. So here I'm writing L minus x upon L into A if your x is greater than equal to. This is called as your standard method. Okay, standard method simply means कि तुम एक जनरल पोजीशन ले लो x और उस पर तुम यूनिट लोड लगा दो, और फिर जो भी पैरामीटर का तुमको ILD बनाना है वो वैल्यू तुम वहाँ से निकाल लो जनरल x के लिए. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे RA निकाल लिया, VC निकाल लिया और MC निकाल लिया. ठीक है, ये तीनों चीज़ें मुझे चाहिए थी, मैंने तीनों चीज़ें निकाल ली. अगर तुम इनका कर्व बनाओगे, ठीक है, अगर मैं RA का कर्व बना रहा हूँ, देखना, अगर मैं RA का कर्व बना रहा हूँ तो कैसा आएगा? मेरे ख्याल से ऐसा आ जाएगा कुछ, यहाँ पे 1, ठीक है, L माइनस एक्स अपॉन L, तो ये नेगेटिव स्लोप की इक्वेशन होगी और x इक्वल टू L पे जाके 0 हो जाएगी. ठीक है, ये तुम्हारा RA का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आ गया. ILD ऑफ रिएक्शन एट A. ठीक है, शेयर फोर्स की जब बात करोगे तो शेयर फोर्स का तुम्हारा कुछ ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे माइनस एक्स बाय एल है. ठीक है, A तक. ठीक है, उसके बाद सडनली ये चेंज हो रहा है और ये हो जा रहा है L माइनस एक्स अपॉन A. तो ये वाली वैल्यू तुम्हारी है x अपॉन L और ये वाली वैल्यू है तुम्हारी, और रादर ये वाली वैल्यू छोड़ो, ये वाली वैल्यू हो जाएगी A अपॉन L. ओके, A अपॉन L. ठीक है, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी L माइनस A अपॉन, टोटल ये रहेगा तुम्हारा 1. ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा ILD फॉर shear एट C. सिमिलरली अगर तुम ये वाला कर्व प्लॉट करोगे तो ये तुम्हारा कुछ ऐसा आ जाएगा, मेरे ख्याल से सीधा ऐसा जाएगा, उसके बाद ये यहाँ गिर जाएगा. ये 0 है, ये A है, ये L है. ये तुम्हारा हो जाएगा ILD फॉर मोमेंट एट C. ठीक है, ये स्टैंडर्ड मेथड है, भूल जाओ जो भी तुमने सुना, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कभी भी तुम्हें स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. हमारे पास एक बहुत इजी मेथड है ILD बनाने का. ठीक है, उसको बोलते हैं मूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल. नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, मूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल. करना क्या है ये इम्पॉर्टेंट है. वैसे मान लो तुम्हें एक शेयर, एक बीम दी हुई है, ये तुम्हारा पिन जॉइंट है और यहाँ पर तुम्हारा रोलर है. ठीक है, यहाँ कहीं C पॉइंट है, जैसा हमारा पहला क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन था. ठीक है, मान लो मुझे RA का ILD बनाना है. ठीक है, आई वॉन्ट टू ड्रॉ ILD फॉर
आर। ठीक है, देखना कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ बनाना है। स्टेप सुनो क्या करना है। सबसे पहली स्टेप इसकी होगी कि तुम कंस्ट्रेंट हटा लो। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, रिमूव कंस्ट्रेंट, ओके, फॉर आर ए। कंस्ट्रेंट फॉर आर ए का मतलब है जैसे यहाँ पर ये कंस्ट्रेंट इसका ये पिन जॉइंट है, ठीक है, जो कि आर ए को क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो तुम क्या करो, अगली स्टेप में जाके ये वाले को हटा दो। मतलब यहाँ कहने का है कि तुम बस यहाँ पे एक रोलर रखो और ये पिन जॉइंट को तुम हटा दो, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में तुम्हें क्या करना है, तुम क्या करो, ये जो एंड हुआ है, जो भी फ्री एंड जनरेट हुआ है, फ्री एंड इज लिफ्टेड बाय यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। मतलब ये है कि तुम यहाँ से इसको पकड़ो और इसको यूनिट डिस्टेंस उठा दो, 1 उठा दो, ठीक है। तो ये कैसे उठ जाएगा, मेरे ख्याल से सीधा सीधा ऐसे उठ जाएगा एकदम, है ना। यही तुम्हारा जो हो गया ILD हो गया फॉर आर ए, ठीक है, ILD हो गया आर ए का, ठीक है। अब देखना इससे चीज़ें कितनी सिंपल हो जाती हैं, ठीक है। एक बार तुमने इसका ILD बना लिया, ठीक है। अभी अभी हमने क्या किया, जैसे अभी अभी तुमने, ये तुम्हारी बीम थी 0, ये रोलर है और ये पेन है, ठीक है। ये तुम्हारा A पॉइंट था, ये तुम्हारा B पॉइंट था। तुमने कहा कि मैंने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बना लिया। अब मैं तुम्हें इसका यूज़ बता रहा हूँ, कैसे यूज़ होगा इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का, ठीक है। तुमने कहा कि जो आर ए का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आएगा, तो यहाँ पे मैंने इसे यूनिट डिस्टेंस उठा दिया और उसके बाद मैंने इसे यहाँ से यहाँ जोड़ दिया। ये मेरा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आ गया, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। अब इसका यूज़ समझना कैसे करेंगे, देखना। ये तुम्हारा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है आर ए का, ILD ऑफ रिएक्शन एट ए। अब मान लो कभी मैं फ्यूचर में तुम्हें एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, फ्यूचर में मैं तुम्हें क्वेश्चन दे देता हूँ कि तुम्हारी सेम बीम है, ठीक है, सेम बीम है, ये पिन जॉइंट है और ये रोलर है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ तुमसे कि मैंने यहाँ पर P अमाउंट का एक फोर्स लगा दिया, ठीक है, P अमाउंट का फोर्स लगा दिया, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे आर ए कितना आएगा। ये क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछ लिया, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ILD है, देखना कितना आसान हो गया। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, जहाँ पे भी ये P एक्ट कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे भी ये P एक्ट कर रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है जिसको मैंने ब्लू से डार्क कर रखा है, ये वैल्यू तुम निकाल लो, ठीक है। मान लो ये वैल्यू x है, तो तुम्हारा आर ए जो आ जाएगा वो P इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा ILD का यूज़ है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। सिमिलरली मान लो, ठीक है, सिमिलरली मान लो कि यहाँ पे ये P लोड ना होता, ठीक है, P लोड होने की बजाय यहाँ पर इतना UDL लगा हुआ है, मान लो। अब क्या करोगे, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, मान लो ये W नाम का UDL लगा हुआ है, तो तुम इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लो पहले तो अपने ILD पे, ठीक है, ये यहाँ तक है मान लो, ठीक है, यहाँ तक इसको तुम प्रोजेक्ट कर लो। अब तुम क्या करो, ये वाला एरिया निकाल लो ट्रेपीजियम का, जिसको मैंने शेड कर दिया, ठीक है, इसको A एरिया बोल रहा हूँ। तो तुम्हारा जो आर ए हो जाएगा वो W इंटू ये एरिया A हो जाएगा। ये होता है ILD का यूज़, ठीक है। जब भी तुम्हें कोई लोडिंग दी हो, तुम इस तरीके से ILD को यूज़ करके अपना वैल्यू आर ए का निकाल सकते हो, ठीक है। एक बार और मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कैसे हमने ILD बनाया, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन का ILD कैसे बनाना है, ठीक है। तो तुम्हें सिर्फ इतना करना है, मान लो ये तुम्हारी बीम है, ये यहाँ पे पिन जॉइंट है, ये यहाँ पे रोलर है, यहाँ मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन RA आनी है, यहाँ पे रिएक्शन RB आनी है। मैंने तुमसे पूछा है कि मुझे ILD बना के दे दो RA का, ठीक है। तो मैंने तुमसे क्या कहा, पहले तो तुम ये सपोर्ट हटा लो, ये पिन जॉइंट, ठीक है, इसको हटा दो और इसको फिर यूनिट डिस्टेंस ऊपर उठा दो, यानी RA की डायरेक्शन में इसको 1 यूनिट ऊपर उठा दो। तो इसको पकड़ के मैंने क्या किया, यहाँ पर यूनिट डिस्टेंस उठा दिया 1, ठीक है। अब ये सीधा सीधा ऐसे उठ जाएगा, है ना, और ये वाला रोलर तो फिक्स ही है, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। इसको पकड़ के मैंने ऊपर उठा दिया, तो ये बीम तुम्हारी ऐसी हो जाएगी। ये तुम्हारा ILD हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा ILD हो गया RA का, ठीक है। ये पॉइंट A है। मान लो मैं तुमसे ILD पूछ लेता RB का, ठीक है। अब क्या करोगे, मैंने रिएक्शन B का मैंने तुमसे
ILD पूछ लिया, तो क्या करोगे, ये रोलर हटाओगे और इसको यूनिट डिस्टेंस ऊपर उठा दोगे, यानी 1 इसको ऊपर उठा दोगे, ठीक है। ये ऐसा ऐसा उठ जाएगा सीधा सीधा तुम्हारा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ये तुम्हारा ILD हो गया RB का, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ गए होगे रिएक्शन का ILD कैसे बनाना है। सेकेंड चीज़ जो है इसमें वो है ILD ऑफ शेयर, ठीक है। ILD ऑफ शेयर, शेयर का ILD हम कुछ ऐसे बनाते हैं कि मान लो तुम्हारे पास ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। मैंने तुम्हें कोई पॉइंट दे दिया C, मैं कह रहा हूँ मुझे ILD ऑफ शेयर एट C बना के दिखाओ, ठीक है। तो पहली स्टेप जो तुमको करनी है, स्टेप 1 जो तुम्हारा देना है वो ये है कि अप्लाई रोलर सपोर्ट लिखने की बजाय स्लाइडर लिख लो, ठीक है। अप्लाई स्लाइडर सपोर्ट एट C। स्लाइडर सपोर्ट लगाने का मतलब होता है कि तुम्हारी जो सेम बीम है, मान लो यही बीम है तुम्हारी, ये तुम्हारा पिन है, ये रोलर है, ठीक है। यहाँ पे कहीं C पॉइंट था तुम्हारा ये वाला, ठीक है। तो मैं इधर पे इसको साफ करके यहाँ पर मैं रोलर सपोर्ट लगाना चाहता हूँ। रोलर सपोर्ट मतलब ऐसा, ठीक है। ये C पॉइंट है और यहाँ पे मैंने उठा के रोलर सपोर्ट लगा दिया, ठीक है। ठीक है भैया, C रोलर सपोर्ट लगा दिया। अब क्या करना है, अब क्या करो, पॉजिटिव कन्वेंशन याद होगा तुम्हें शेयर का, ये लेफ्ट सेक्शन पे नीचे पॉजिटिव रहता है और राइट सेक्शन पे ऊपर पॉजिटिव रहता है। तो ये लेफ्ट सेक्शन को उठा के नीचे खींच दो और राइट सेक्शन को उठा के ऊपर खींच दो, ठीक है। लेफ्ट सेक्शन को उठा के नीचे और राइट सेक्शन को उठा के ऊपर खींच दो, तो बीम का डिफ्लेक्टेड शेप कैसा दिखेगा तुम्हें, कुछ ऐसा दिखेगा। देखना, ये तुम्हारी ओरिजिनल बीम थी, ठीक है। ये ओरिजिनल बीम है, ठीक है। अब जो तुम्हारी बीम की हालत हो जाएगी ये खींचने के बाद, ठीक है, वो कुछ ऐसा दिखेगी। यहाँ से तुमने इसको नीचे खींच दिया थोड़ा सा और यहाँ पे तुमने इसको ऊपर खींच दिया। ये हो गया तुम्हारा ILD फॉर शेयर एट C। अब तुम्हें एक चीज़ इसमें पता करनी पड़ेगी कि ये वैल्यूज़ क्या हैं, ये वैल्यू क्या है और ये वैल्यू क्या है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, अगर ये वैल्यू मेरी x है और ये वैल्यू मेरी y है तो टोटल x प्लस y हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। अब x और y को मैं निकालूंगा कैसे, ठीक है। मान लो ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस तुम्हें पता होगी, ये A है, ये B है, A और B नोन है, ठीक है ना। C पोजीशन तुम्हें पता होगी क्योंकि C पॉइंट की पोजीशन पता रहेगी तुम्हें। तो यहाँ पे अगर मैं tan θ लगा देता हूँ तो तुम y की वैल्यू मुझे बता सकते हो, मेरे ख्याल से θ2, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये दोनों थीटा ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये भी थीटा है तुम्हारा और ये भी थीटा ही रहेगा, ठीक है। अब तुम कह सकते हो कि x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी कितनी, b थीटा, और y की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी x थीटा, ठीक है। और इक्वल टू 1, तो तुम थीटा लिख सकते हो, सॉरी a थीटा, ठीक है। b थीटा प्लस a थीटा इज इक्वल टू 1, तो तुम कह सकते हो थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b, ठीक है ना। तो x तुम्हारा कितना था, x था तुम्हारा b थीटा, यानी b अपॉन a प्लस बी ये आ जाएगा और y आ जाएगा तुम्हारा a अपॉन a प्लस बी। तो अब तुम याद कर सकते हो कि ये वाली वैल्यू जो रहेगी वो b अपॉन a प्लस बी रहेगी और ये वाली वैल्यू a अपॉन a प्लस बी रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ILD बनाते हैं शेयर फोर्स का, ठीक है। क्या करना क्या है, जिस भी पॉइंट पे तुमसे शेयर पूछा है उस पॉइंट पर तुम ऐसा स्लाइडर सपोर्ट लगा लो, पहला काम। दूसरा काम तुम्हें ये करना है, ये लेफ़्ट वाले सेक्शन को उठा के नीचे खींच लो, स्लाइडर है तो नीचे चला जाएगा सीधा सीधा, और ये राइट वाले पोर्शन को पकड़ के ऊपर खींच लो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अब जो टोटल तुमने जो खींचा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस ये 1 रहेगी, ठीक है। तो अब तुम याद कर सकते हो ये वाली डिस्टेंस ऊपर वाली आएगी b अपॉन a प्लस बी, a प्लस बी कुछ नहीं है, लेंथ है उसकी, b अपॉन l हो जाएगा ये, ठीक है। और ये वाली हो जाएगी a अपॉन a प्लस बी, यानी a अपॉन l, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा ILD फॉर शेयर फोर्स। आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो है हमारे पास ILD फॉर मोमेंट एट C। सेम बीम है, ठीक है। ये तुम्हारा पिन जॉइंट है, रोलर, C पॉइंट है कहीं यहाँ, ठीक है। मोमेंट एट C का
इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम मुझे बनाना है, ठीक है। क्या करूँ, पहली स्टेप तुम्हारी होगी स्टेप 1, वो होगी कि सी पॉइंट पे उठा के तुम क्या करो, हिंज लगा दो, ठीक है। हिंज लगा दो तो ये तुम्हारी जो बीम होगी वो कुछ ऐसी दिखने लग जाएगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप तुमको फॉलो करना है, कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। सी पॉइंट जिस पे तुम्हें निकालना था मोमेंट, वहाँ पे तुम एक हिंज लगा दो। हिंज लगाने के बाद क्या करोगे, हिंज लगाने के बाद जो तुम्हारी सेकंड स्टेप होगी वो तुम एक मोमेंट या इसको रोटेट कर दो इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, और इस वाले पार्ट को रोटेट कर दो इस डायरेक्शन में। जो भी डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा वही तुम्हारा ILD होगा। अब सोचो, मैंने इस पार्ट को उठा के इधर रोटेट कर दिया और इस पार्ट को उठा के इधर रोटेट कर दिया, तो मेरा ILD या डिफ्लेक्टेड शेप कैसा दिखेगा इस बीम का, ठीक है। मुड़ने के बाद ये बीम कैसी दिखेगी, ये पिन है, ये रोलर है, अब ये भूल जाओ पिन और रोलर, बस तुम डिफ्लेक्टेड शेप बनाओ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट तो फिक्स रहेगा, ये पॉइंट ऐसा उठ जाएगा, ठीक है, और ये पॉइंट ऐसा उठ जाएगा। ये तुम्हारा हो गया ILD फॉर मोमेंट एट सी। पता करने वाली बात सिर्फ एक है कि ये वाली वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना होगा, मान लो ये वाला एंगल मान लो θ2 है, ये वाला एंगल θ1 है, तो ये वाला एंगल θ1 होगा, θ2 होगा, ये ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस तुम्हें पता है, ये A है, ये वाली डिस्टेंस B है, इसको मैं x कह लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म रहेगी कि θ1 + θ2 1 रहेगा, यानी हमें यूनिट रोटेशन इसको देना होगा, ठीक है। ये बात हमेशा कंफर्म रखना, θ1 + θ2 = 1। तो अब तुम क्या x की वैल्यू मुझे बता सकते हो, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ θ1 को मैं लिख सकता हूँ x/a इस ट्राइंगल से, और θ2 को मैं लिख सकता हूँ अगेन x/b = 1। तो x तुम्हारा मेरे ख्याल से आ जाएगा AB/a+b, ठीक है। तो अब हम कभी निकालेंगे नहीं, अब हम सिर्फ याद रखेंगे कि ये वाली वैल्यू आएगी AB/a+, ठीक है। इस तरीके से हम ILD ऑफ मोमेंट बनाते हैं। कैसे, जिस भी पॉइंट पे तुम्हें मोमेंट का ILD बनाना है उस पॉइंट पर एक हिंज लगा दो और इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट और राइट में क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। जो भी डिफ्लेक्टेड शेप तुम्हारा बनेगा वही तुम्हारा ILD होगा, ठीक है, वही तुम्हारा ILD होगा। ये जो मिडिल वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, वो होगी AB/a+b, बस, ठीक है। यही 3 चीज़ों पे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, तो यही तुम्हें याद रखना है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं ILD के बारे में, ठीक है। ILD के बारे में कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट तुम्हारा है कि फॉर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ILD, ओके, ILD इज ऑलवेज, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ILD इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन अंडरलाइन, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जब भी मैं डिफ्लेक्ट कर रहा हूँ तो मेरी स्ट्रेट लाइन ही बने। इफ़ इन डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इफ़ इन डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर डिफ्लेक्टेड शेप, जो हम डिफ्लेक्टेड शेप बना रहे थे लास्ट में, ठीक है, comes out to be curved, ठीक है, comes out to be curved, then ILD of that zone is, okay, 0, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि मान लो कभी तुम इस तरीके से उठा रहे हो, जैसे यूनिट डिस्टेंस हम उठा रहे थे ऊपर, तो मान लो तुम्हारा कर्व्ड शेप बन रहा हो, ठीक है। तो कर्व्ड शेप अगर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में बन रहा है, मतलब वहाँ पे ILD तुम्हारा नहीं आएगा, ILD को सिंपली 0 कर दो, ठीक है। चलो, ये 2 पॉइंट हैं जो तुमको ध्यान रखने हैं। एक तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का ILD हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अगर कर्व्ड आता है तो वहाँ पे तुम उसको उठा के 0 कर दो, बस इतना तुमको याद रखना है। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। मान लो, ठीक है, ये पिन जॉइंट है। जितने स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा सारे डिटर्मिनेट ही होंगे, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे कोर्स में, हमारे कोर्स में जो है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ही है। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का ILD हमें नहीं बनाना है, ठीक है, डिटर्मिनेट से ही हमको मतलब है। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे तुम्हें करना ये है कि तुमको RB, ठीक है, क्वेश्चन है ड्रॉ ILD फॉर RB, VC एंड MC, ठीक है।
सी पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर है सेंटर पे, ये 2.5 है, ये 2.5 है, और ये तुम्हारा पॉइंट बी है, तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन बी आएगी, उसका ILD तुम्हें बनाना है। ये पॉइंट ए है, तो यहाँ पे RA आएगा। ठीक है, समझ गए होगे क्वेश्चन? ठीक है, अब जल्दी जल्दी बना सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, जैसे मान लो मुझे RB का बनाना है, तो RB का बनाना है तो स्टेप्स क्या क्या हैं तुम्हारी? पहले तुम ये रोलर सपोर्ट हटा लो, हट गया, इसको यूनिट डिस्टेंस ऊपर उठा दो ILD की, इसके RB की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट B है, मैंने रोलर हटाया और इसको ऊपर उठा दिया यूनिट डिस्टेंस, तो ये बीम का डिफ्लेक्टेड शेप कैसा हो जाएगा? मेरे ख्याल से ये सीधी सीधी ऐसे उठ जाएगी, है ना। इसको पकड़ के तुमने ऊपर उठा दिया B पॉइंट को, ठीक है, तो तुम्हारी बीम सीधे सीधे कुछ ऐसे उठ जाएगी। ठीक है, तो यही तुम्हारा ILD हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा ILD हो जाएगा, ILD फॉर RB। ठीक है, अगर मान लो ILD फॉर RA भी पूछा होता, RA भी जोड़ लो इसी में। ठीक है, अगर ILD फॉर RA भी पूछा होता तो ये रही तुम्हारी A पॉइंट, करोगे क्या? इस A पॉइंट को यूनिट डिस्टेंस ऊपर उठा दोगे, ये उठा दिया मैंने। ठीक है, तो मेरी बीम कैसे उठेगी? और रोलर से तो जुड़ी हुई है। ठीक है, रोलर से जुड़ी हुई है, तो ये सीधे सीधे कुछ ऐसे उठ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें निकालना क्या होगा? ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये वाली वैल्यू तुम निकाल सकते हो। अगर ये वाली डिस्टेंस है तुम्हारी 5 ही है। ठीक है, ये 5 है, अगर ये 5 पर 1 है, ठीक है, तो 10 पे कितनी होगी? डबल हो जाएगी, 2। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ जाओ, ये अगेन तुम्हारी ये 5 है, ठीक है, ये भी 5 ही है, लग नहीं रहा सिमेट्रिक, ये 1 है, तो मेरे ख्याल से ये भी 1 ही होगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया ILD फॉर रिएक्शन एट A। RA के लिए तुम्हारा ILD हो गया। अब बची दो चीज़ें, शियर एट C और मोमेंट एट C। फिर से मैं तुम्हारी बीम बना दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, ये पिन है, यहाँ पे रोलर है, यहाँ पे C पॉइंट है सेंटर में, ये 2.5, 2.5 और 5। ठीक है, शियर अगर बना रहे हो तो क्या करोगे? यहाँ पे रोलर लगा दोगे, स्लाइडर लगा दोगे, स्लाइडर लगा दोगे यहाँ पे, और लेफ़्ट वाले पार्ट को नीचे खींच लोगे और राइट वाले पार्ट को ऊपर खींच लोगे। मेरे ख्याल से लेफ़्ट वाले पार्ट को नीचे खींचोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, राइट वाले पार्ट को ऊपर खींच दोगे तो मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा ILD फॉर शियर एट C बन जाएगा। मैंने तुम्हें बताया था ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी B, यानी ये वाली वैल्यू 2.5/5 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू भी तुम्हारी 2.5/5 हो जाएगी। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस 2.5 है और ये वाली डिस्टेंस 5 है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये थीटा तुम निकाल सकते हो, वही थीटा यहाँ पर भी होगा। ठीक है, वही थीटा यहाँ पर भी होगा, तो उस थीटा और 5 को यूज़ करके तुम ये वाली डिस्टेंस इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हारे ऊपर। मोमेंट का और बना लेते हैं, मोमेंट का और बना लेते हैं। मोमेंट के लिए क्या करना था? यहाँ पे एक हिंज लगानी थी C पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे हिंज लगानी थी C पर, और इसको इधर रोटेट कर देना है, इसको इधर रोटेट कर देना है। ठीक है, अगर मैं रोटेट कर दूंगा तो मेरा डिफ्लेक्टेड शेप शायद कुछ ऐसा बन जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा और यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ये वैल्यू तुम्हें पता ही है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 × 2.5/2.5 + 2.5, AB/A+B। ठीक है ना, AB/A+B, तो मेरे ख्याल से 1.25 कुछ आ जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो थीटा पता चल जाएगा, वही थीटा यहाँ भी होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस 5 है, तो 5 थीटा तुम्हारा ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। मेरे ख्याल से समझ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। और थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, मान लो थोड़ा टफ सा देख लेते हैं एक बार। मान लो बड़ी सी बीम है तुम्हारे पास यहाँ पे। ठीक है, ये पिन है, ये रोलर है। ठीक है, यहाँ पे एक पिन और है, फिर यहाँ पे एक हिंज, यहाँ पर एक हिंज यहाँ पर है, और एक पिन और है। इस टाइप से तुम्हारी कुछ बीम है। ठीक है, अब करना तुम्हें ये है कि तुमको
ILD बनाना है, ठीक है, ILD बनाना है तुम्हें, रादर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ILD, ठीक है, ILD बनाने हैं तुम्हें। पहले तुम्हें ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है, C और D। तुमको RA का बनाना है ILD, RB का बनाना है, ठीक है। फिर तुम्हें इनका मिड पॉइंट है E, ठीक है। तुम्हें shear at E का बनाना है, मोमेंट at E का बनाना है, ठीक है, समझ गए होगे? ओके, या एक काम करो, इसके अलावा चलो अच्छा इतना कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करो, RA का बना रहा हूँ मैं जैसे, अब ध्यान से देखना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये समझ गए तो ILD में कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। A पॉइंट का ILD बना रहा हूँ, तो मैं ये वाला सपोर्ट हटाऊँगा और इस पॉइंट को यूनिट डिस्टेंस ऊपर उठा दूँगा, उठा दिया मैंने। अब देखते हैं मेरी बाकी बीम का क्या होता है, ठीक है, देखते हैं मेरी बाकी बीम का क्या होता है। मैं बना रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये वाला पॉइंट ऐसे उठाया, ये वाला पॉइंट B तो फिक्स है, पिन जॉइंट है, तो ये तो ऐसा आना ही पड़ेगा। फिर ये वाला पॉइंट इधर चला गया, यहाँ पे हिंज है, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाली हिंज ये दूसरी वाली हिंज को भी उठाने की कोशिश करेगी, ठीक है। ये कुछ मान लो कुछ ऐसे उठाने की कोशिश करेगी कि यहाँ तक आ जाए, ठीक है। सेम लेवल पर भी आ सकता है, ठीक है, कुछ ऐसे उठाने की कोशिश होगी, ठीक है, कोशिश होगी। अब दिक्कत क्या होगी, जैसे ही ये हिंज उठी, ठीक है, अब तुम आगे सोचो क्या होगा। जैसे ही तुमने ये उठाया, यहाँ पे तुम्हारा कर्व्ड शेप आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लेके यहाँ तक तुम्हारा कर्व शेप है। तुम सोचो अच्छे से, अगर ये वाली हिंज उठी ऊपर, ठीक है, तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक पूरा ये कर्व्ड रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। और ILD कभी भी कर्व्ड नहीं हो सकता डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो अगर वो कर्व्ड हो रहा है तो उसको सिंपली क्या करोगे, ज़ीरो कर दोगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये टेक्निक है तुम्हारी ILD की कि तुम इसको ज़ीरो कर दोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये वाली हिंज, सेकेंड वाली हिंज उठ नहीं सकती यहाँ से, ये उठेगी तो कर्व शेप बनना शुरू हो जाएगा, तो इस हिंज को यहीं पर रहना पड़ेगा, ठीक है। ये तुम्हारा ILD होगा, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा ILD हो जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे रहेगा जस्ट पीक, ठीक है, इस टाइप से कुछ तुम्हारा ILD आ जाएगा। सारी स्ट्रेट लाइन्स हैं, ठीक है। RB बना लेते हैं, ठीक है। RB पे क्या करोगे, ये पिन हटाओगे, RB को ऊपर उठा दोगे, यूनिट डिस्टेंस उठा दिया मैंने, यूनिट डिस्टेंस ऊपर। A तो फिक्स है तो ये ऐसा उठेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगेन सेम चीज़ होगी, ये सेकंड वाली हिंज फिर से नहीं उठ सकती, ये वहीं पे बैठी रहेगी, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। ये वाली हिंज तो उठ जाएगी, पर ये सेकंड वाली हिंज नहीं उठ सकती, तो मेरे ख्याल से इस तरीके से ऊपर जाएगा इस हिंज तक, और फिर यहाँ पे जाके ये वाली हिंज पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये जो ब्लैक वाला मैंने दिखा रखा है, ये तुम्हारा हो जाएगा ILD फॉर RB, ठीक है। नेक्स्ट मैं ये रब कर देता हूँ, थोड़ी जगह हो जाएगी, चलो ठीक है। मान लो मुझे ILD बनाना है shear at E का। shear at E के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्लाइडर लगाऊंगा और इसको नीचे खींच दूंगा, इसको ऊपर खींच दूंगा, ठीक है। तो देखना ये वाला पार्ट तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। पर क्या ये बीम ऊपर उठ सकती है, नहीं उठ सकती, क्योंकि ये बीम अगर उठी तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कर्व्ड शेप आएगा। सिमिलरली ये वाली बीम, ये वाली हिंज तुम्हारी ऊपर नहीं उठ सकती, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा कर्व्ड हो जाएगा। तो तुम्हारा shear फोर्स एट E सिंपली ऐसा आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसा और यहाँ से यहाँ तक ऐसा, समझ रहे होगे मेरे ख्याल से। ये हो गया तुम्हारा shear एट E। सिमिलरली तुम अगर मोमेंट की बात करोगे, मोमेंट एट E की, ठीक है, इसी में बना दे रहा हूँ मैं डिलीट करके, मोमेंट एट E की जब बात करोगे तो फिर से तुम्हारी ये वाली बीम नहीं उठ सकती, ये वाली बीम नहीं उठ सकती। यहाँ तुम हिंज लगाओगे, इसको इधर रोटेट करोगे, इसको इधर रोटेट करोगे, तो ये तुम्हारा कुछ ऐसा दे देगी, ठीक है। बस इतना ही तुम्हारा ILD फॉर ME आ जाएगा, ठीक है, समझ गए होगे मेरे ख्याल से। चलो
तो इस तरीके से तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे कर्व्ड शेप आने की वो है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ पे तुम्हें रोकना होगा। जैसे इस हिंज के उठने से यहाँ पे कर्व्ड शेप आ रहा था इतनी बीम में, तो मैं इस हिंज को उठा ही नहीं सकता, इस हिंज को यहीं पे रहना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें जज करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तुम समझ गए होगे किस तरीके से हमें ILD बनाना है। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब मान लो ठीक है, मान लो मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास इस टाइप की बीम है, ये पेन है, ये रोलर है, यहाँ पे पॉइंट C है। गिवन हमको ये है कि ठीक है, दो फोर्सेस यहाँ पे लगे हुए हैं, एक यहाँ पे ये 4000, ठीक है, लगा हुआ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक UDL लगा हुआ है, ठीक है। ये है तुम्हारा 2000 न्यूटन पर मीटर और ये 4000 न्यूटन, ठीक है। करना तुम्हें क्या है, तुम्हें निकालना है शीयर एट C, ठीक है। शीयर एट C बस निकाल लो, बाकी मैं तुम्हें हिंट कर दूंगा, ठीक है। शीयर एट C कैसे निकालोगे, अब तुम चाहो तो नॉर्मल स्टैंडर्ड मेथड से जाके कैलकुलेशन कर सकते हो, सारे रिएक्शन वगैरह निकालोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, वैसे सॉल्व कर सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है। पर जब तुम्हें कहा गया है कि ILD से करो, या ILD से ये बेसिकली सिंपल भी बहुत हो जाएगा। देखना कैसे, तुम क्या करो, शीयर का ILD बना दो C पे। शीयर का ILD कैसा आता है, इधर पे स्लाइडर लगाओगे, उसको नीचे खींचोगे, उसको ऊपर खींचोगे, ठीक है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू C पॉइंट की लोकेशन है तुम्हारी, ये 2.5 है और ये 7.5, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला आ जाएगा 0.75 और ये वाला आ जाएगा 0.25, ठीक है। निकाल के देख लेना, ये वाला कितना होता है, B/L होता है और ये वाला A/L होता है, ठीक है। तो B कितना है तुम्हारा 7.5, L कितना है 10 मीटर, 7.5/10 कितना आ जाएगा 0.75, ये 0.75 आ जाएगा, ये 0.25 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरे ख्याल से। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये मैं पहले ही तुम्हें हिंट कर चुका हूँ। यहाँ पे गलती एक क्या करते हैं लोग, जैसे मान लो यहाँ पे 4000 लगा हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें बहुत बड़ी दिक्कत होगी कि मैं 4000 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, मैं 4000 को 0.75 से मल्टीप्लाई कर दूँ, या 0.45 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दूँ, या 4000 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। इस 4000 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। अब क्या होता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि 0.75 तुम्हारा जस्ट राइट में एग्जिस्ट कर रहा है C पॉइंट के, और 0.25 तुम्हारा जस्ट लेफ्ट में कर रहा है, ठीक है। तो तुम्हें दोनों निकालने पड़ेंगे, जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट दोनों में, ठीक है। जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट ऑफ C, ठीक है, दोनों निकालने पड़ेंगे, और दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा वो तुम रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, वो तुम रिपोर्ट कर सकते हो। तो अब मैं क्या करूँ, पहले तो मैं इस यूनिट लोड का ख्याल कर लेता हूँ, 4000, ठीक है। ऑब्वियसली 0.75 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैक्सिमम के लिए, 0.75, ये आ जाएगा, VC निकाल रहा हूँ, ठीक है। 4000 इंटू 0.75 प्लस UDL के लिए क्या करना पड़ेगा, 2000 इंटू ये वाला एरिया, ठीक है। UDL के लिए 2000 का UDL है, मल्टीप्लाइड बाय दिस शेडेड एरिया, ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा, ट्राइंगल है, हाफ इंटू 7.5 इंटू 0.75, बस इतना सा तुम्हें करना है, और इसकी वैल्यू तुम निकाल लेना। मैंने निकाल रखी है, 8625 न्यूटन आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब मैं बाकी तुम्हें हिंट कर दे रहा हूँ, जैसे मान लो वो मोमेंट पूछ लेता कि मोमेंट कितना आएगा इस केस में, ठीक है। फिर से बनाना पड़ेगा, ये तुम्हारी बीम है, ये हिंज है, ये रोलर है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा C पॉइंट है, ये सेम तुम्हारा वही UDL है, ठीक है, और ये तुम्हारा पॉइंट लोड है। अब तुम अगर C पॉइंट पे मोमेंट का ILD बनाओगे तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा आ जाएगा, आप जल्दी जल्दी बना सकते हो, ठीक है। ये वैल्यू कितनी रहती है, 2.5 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 10, ठीक है। करना क्या होगा, ये 4000 था, ये 2000 था, ठीक है। 4000 मोमेंट एट C आ जाएगा, ठीक है। ये है तुम्हारा ILD ऑफ मोमेंट एट C, तो MC तुम्हारा आ जाएगा 4000 मल्टीप्लाइड विथ दिस लेंथ
2.5 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 10 प्लस 2000 यूडीएल जो है मल्टीप्लाइड विद दिस एरिया, शेडेड एरिया जो बता रहा हूँ मैं ब्लैक से, तो ये तुम्हें पता है ये कितना हो जाएगा, हाफ ये वाली लेंथ जो मैंने लिख रखी है, ये वाली लेंथ मल्टीप्लाइड विद 7.5, ये तुम्हारा हो जाएगा मोमेंट एट सी। ठीक है, सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हो, वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमें इसका प्रैक्टिकल यूज़ करना होता है आईएलडी का। तो प्रैक्टिकल यूज़ भी मैंने तुम्हें बता दिया। कुछ और सिंपल क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें कई बार कन्फ्यूजन सा हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे मुझे आईएलडी बनाना है, ये मान लो ए पॉइंट है, मुझे आईएलडी बनाना है शेयर एट ए का। क्या करूँ, शेयर एट ए का जब तुम्हें आईएलडी बनाने के लिए कहा जाएगा तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, पहली स्टेप क्या होगी, रिस्ट्रेंट हटाना है। रिस्ट्रेंट का मतलब है जो इस शेयर को प्रोड्यूस कर रहा है उसे हटा दो। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, शेयर के लिए मैं यहाँ पे इस टाइप का रोलर लगा दूंगा। ठीक है, और इसको मैं ऊपर उठा दूंगा यूनिट डिस्टेंस, तो मेरे ख्याल से पूरी बीम ऊपर उठ जाएगी, है ना, पूरी बीम ऊपर उठ जाएगी। तो कई बार लोग गलत बना देते हैं, सीधा तुम्हारा आईएलडी जो आ जाएगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा 1 थ्रू आउट, है ना। तो इस तरीके से तुम शेयर का बना सकते हो। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इसमें, बाकी मेरे ख्याल से तुम कर लोगे। ठीक है, ठीक है, ओके। इसके बाद जो हमारे पास है वो है गर्डर्स। ठीक है, ड्राइंग आईएलडी ऑफ गर्डर्स। नेक्स्ट है हमारे पास आईएलडी ऑफ गर्डर्स। ठीक है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि गर्डर्स होते क्या हैं। गर्डर्स यूजुअली ब्रिज में यूज़ होते हैं। अगर तुमने देखा हो कभी ब्रिज का अगर टॉप व्यू तुम देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप से तुम्हारी यहाँ पे 2 बीम्स रन कर रही होंगी। ठीक है, इस टाइप से कुछ यहाँ पे तुम्हारी एक बीम यहाँ पे होगी और एक बीम तुम्हारी कहीं यहाँ पे होगी। ठीक है, और उसके ऊपर क्या होगा, इस टाइप से तुम्हारे हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होंगे। उसके बाद इसके ऊपर तुम्हारा डेक आएगा। ठीक है, इसके ऊपर पूरा तुम्हारा डेक आएगा जिसके ऊपर व्हीकल्स चलेंगे। इस टाइप का तुम्हारा कुछ ब्रिज का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जो डेक पे जो लोड आता है वो इन रेड वालों पे ट्रांसफ़र होता है और रेड वालों से तुम्हारा ये ब्लू वाली बीम्स पे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अगर तुम इसको हॉरिजॉन्टली देखोगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये तुम्हारा बीम है, मान लो मेन बीम। ठीक है, यहाँ पिन है, कहीं यहाँ रोलर है। ठीक, यहाँ पर ये रेड वाले जो हैं वो कुछ इस टाइप से अरेंज रहेंगे आई बीम के फॉर्म में। ठीक है, इस टाइप से कुछ तुम्हारे अरेंज रहेंगे इस बीम के ऊपर। ठीक है, और उसके ऊपर तुम्हारा जो होगा वो डेक आएगा। ठीक, ये तुम्हारा डेक रहेगा ऊपर, ये वाला। ठीक है, तो सबसे ऊपर तुम्हारा डेक रहता है। डेक से जो लोड रहता है वो तुम्हारा इसको जो हम बोलते हैं स्ट्रिंगर बीम बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रिंगर बीम पर ट्रांसफ़र होता है और स्ट्रिंगर बीम से फाइनली तुम्हारी जो मेन बीम रहती है उस पर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसका हमें आईएलडी बनाना आना चाहिए। ठीक है, इसका हमें आईएलडी बनाना आना चाहिए। आईएलडी हमको इस बीम का बनाना है, मेन बीम का बेसिकली। ठीक है, अब तुम खुद सोच सकते हो कि मेन बीम पर लोडिंग कहाँ लगेगी। व्हीकल तुम्हारा कहीं भी मूव कर रहा हो, लोडिंग तुम्हारी इसके थ्रू ट्रांसफ़र होगी। ये जो आई सेक्शन और सी सेक्शन लगे हुए हैं, तो लोडिंग तुम्हारी या इस पॉइंट पे होगी या इस पॉइंट पे होगी या इस पॉइंट पे होगी। पॉइंट लोडिंग बेसिकली तुम्हारी होगी। मान लो मैंने नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो गर्डर्स में हम क्या करते हैं, बेसिकली तुम इंडिविजुअली एक एक करके, ये मान लो तुम्हारी बीम है, तो नीटली बना देते हैं। ठीक है, इसमें कोई शॉर्टकट हम नहीं अप्लाई कर सकते। तुम्हें इसमें क्या करना पड़ेगा, गर्डर में जैसे तुम्हारा ब्लू वाली तुम्हारी बीम है, ये तुम्हारा पिन है और ये तुम्हारा रोलर है। एक एक करके पहले तुम मान लो 1 पे यूनिट लोड लगा लो। ठीक है, जैसे तुम्हें
रिएक्शन एट ए का बनाना है आईएलडी, तो तुम ये रिएक्शन ऑब्टेन कर लो, ठीक है। ये तुम्हारा पहला स्टेप हो जाएगा, ठीक है। अब तुम आर ए का अगर आईएलडी बना रहे हो तो तुम्हें कुछ वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर तुम यूनिट लोड को 2 पॉइंट पे लगा दो, इस 2 पॉइंट पे, ठीक है। फिर आर ए ऑब्टेन कर लो तो तुम्हें कुछ वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो तुम्हें ये सेकंड पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 2 पॉइंट मिल गया, 1 पॉइंट मिल गया। सिमिलरली तुम्हें 3, 4, 5, 6 इस टाइप के पॉइंट मिल जाएंगे। इन पॉइंट्स को इंडिविजुअली स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना तो तुमको आईएलडी मिल जाएगा रिएक्शन का। ये मेथड हम फॉलो करते हैं गर्डर पर, यानी हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम एक एक करके पॉइंट पे लोड लगाते जाओ और इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकालते जाओ। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ये तुम्हारी बीम है, ठीक है। यहाँ पे रोलर है, मान लो ये पिन है, ठीक। और इस पर यहाँ पे मान लो एक सी सेक्शन है, यहाँ पर एक आई सेक्शन है, ठीक है। एक आई सेक्शन यहाँ है, एक आई सेक्शन यहाँ है और एक सी सेक्शन यहाँ है। और इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर तुम्हारा डेक है, ठीक है। पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। तुम्हें बनाना है ILD फॉर पैनल शेयर, बोलते हैं इसको पैनल शेयर इन CD। CD का मतलब है कि लोड तुम्हारा इसके बीच में कहीं घूम रहा है, CD के बीच में, तब तुम्हें इसका ILD बनाना है, ठीक है। अब सॉरी, लोड तुम्हारा पूरी बीम पे घूम रहा है, CD पैनल शेयर के लिए तुम्हें बनाना है। तो मतलब तुम क्या करोगे, एक एक करके तुम सॉल्व करोगे। पहले तुम क्या करोगे, ए पे लगाओगे यूनिट लोड, ठीक है। ये तुम्हारा रोलर है और ये तुम्हारा पिन है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना होगा, CD पैनल शेयर का मतलब है, ठीक है, कांस्टेंट शेयर आएगा। यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, कोई भी सेक्शन यहाँ पे काट लो CD पे और इसकी वैल्यू ऑब्टेन कर लो। मान लो वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। 1 में नोट कर दे रहा हूँ, तुम खुद निकाल लेना। उसके बाद क्या करो, 2 पे लगा दो, यानी इस रोलर पे लगा दो, ठीक है। और पैनल शेयर ऑब्टेन कर लो CD का, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ो, इस वैल्यू को 2 बोल लेते हैं, ठीक है, जो भी आएगी शेयर की। उसके बाद और आगे बढ़ो, इस वाले पॉइंट पे 1 लगा दो, C पॉइंट पे, ठीक है। और पैनल शेयर ऑब्टेन कर लो, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, रिएक्शन निकालनी है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इस तरीके से तुम वैल्यूज ऑब्टेन कर लोगे, ठीक है। तुम खुद कर लेना, मैंने निकाल रखा है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारी जो वैल्यूज़ आएंगी, मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे ये पॉइंट A है, B, C, D, E, ठीक है, E। यहाँ पर A पर जो तुम्हारी वैल्यू आएगी पैनल शेयर की, वो आएगी कुछ 0.33, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट मार्क कर दिया। B पे तुम्हारी 0 आएगी, क्योंकि तुमने सीधा रोलर पे लगा दिया था तो पूरा पूरा रिएक्शन में चला जाएगा ये 1, ठीक है। तो यहाँ 0 आनी है। C पे जब तुम जाओगे तो यहाँ पे तुम्हारी कुछ आ रही है -0.33, ठीक है। D पे आ रही है तुम्हारी +0.33, ठीक है। और E पे जाके आ रही है तुम्हारी आई थिंक 1 आ रही है, ठीक है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बस तुम इन पॉइंट्स को क्या करो, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, यही तुम्हारा ILD हो जाएगा इसका, पैनल शेयर का, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है सारी, स्ट्रेट लाइन तुम इसको जोड़ दोगे तो यही तुम्हारा ILD फॉर शेयर, या पैनल शेयर बोलते हैं CD में। यहाँ कहीं भी तोड़ोगे शेयर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो CD में पैनल शेयर फॉर CD का ILD कुछ इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। इंडिविजुअली लोड लगाओ सारे पॉइंट्स पे और करस्पॉन्डिंग शेयर निकालते जाओ और सबको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। ये प्रोसेस है तुम्हारा गर्डर पे ILD बनाने का। नेक्स्ट है तुम्हारा ट्रसेस, ठीक है। ट्रसेस का ILD हमको बनाना है, ठीक है। ट्रसेस का ILD बड़ा सिंपल है, कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारी कुछ ऐसी ट्रस है, ठीक है। एक सिंपल तरीका है बनाने का, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कर लो, ऐसा भी कर लो। ये पिन है, ये रोलर है। ILD का ट्रस में मतलब ये होगा कि तुम्हारा लोड, जैसे मान लो कोई ट्रेन वगैरह यहाँ पे मूव करेगी, ठीक है।
पर जो ट्रस पे लोड लगता है वो हमेशा जॉइंट्स पे लगता है, ठीक है। ट्रस का जो भी लोडिंग होती है वो जॉइंट्स पे होती है, तो या तो तुम्हारी इस जॉइंट पे लोडिंग होगी, या इस जॉइंट पे 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 होगी, ठीक है। लोडिंग इन 5 जो डार्क डॉट बनाए हैं इन्हीं पे होगी, ठीक है। अब मान लो मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये ए बी जो मेंबर है, ये ब्लू से जो मैंने बना दिया, इसका मुझे ILD बनाओ, ठीक है। ILD ऑफ ए बी मेंबर मुझे बना के दिखाओ। इसका मीनिंग ये है ILD बनाने का कि तुम्हारा लोड यहाँ पे मूव करेगा, इस डॉट से लेके यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, तो तुम्हारा ए बी का जो एक्शियल फोर्स होगा वो कैसे वेरी कर रहा होगा, ठीक है, लोड के मूव करने के साथ, ठीक है। तो ये हमें बनाना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो एक एक करके करते हैं इसको सॉल्व, जैसे हम अभी कर रहे थे। एक बार वो यहाँ लोड लगाएंगे, ठीक है, फिर वो यहाँ लगाएंगे, ठीक है, फिर वो यहाँ लगाएंगे, और करस्पॉन्डिंगली वो फोर्स इसमें निकालते जाएंगे सॉल्व कर करके, ठीक है। ये बहुत लेंदी प्रोसीजर है, ठीक है। इसका एक शॉर्ट प्रोसीजर है, शॉर्ट और सिंपल प्रोसीजर है। सिंपल प्रोसीजर ये है कि तुम इतना करने की बजाय सिर्फ 2 पॉइंट्स सॉल्व करो, एक ये वाला यानी ए के नीचे वाला, और एक ये वाला। कहने का मतलब है कि तुम एक बार इस पे यूनिट लोड लगाओ और ए बी में फोर्स निकाल लो, ठीक है। उसके बाद तुम एक बार इस पे यूनिट लोड लगाओ सेकेंड स्टेप में, और फिर लोड निकाल लो, ठीक है। अब तुम क्या करो, मान लो मैंने नंबर दे दे रहा हूँ ABCDE, तुमने बी पे यूनिट लोड लगाया और इसमें फोर्स निकाल लिया, कुछ वैल्यू मिल गई तुमको, यहाँ तुम मार्क कर लो उसको ABCDE, ठीक है। तुमने सी पे फोर्स लगाया, तुम्हें कुछ वैल्यू मिल गई, तुम उसको मार्क कर लो, ठीक है। बस ये 2 वैल्यूज़ की तुम्हें ज़रूरत है ILD बनाने के लिए। बाकी सारी वैल्यूज़ को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, ये पॉइंट 0 होगा यहाँ से, ठीक है। इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, और इसको इससे जोड़ दो, ख़त्म करो। ये हो गया तुम्हारा ILD ऑफ फोर्स इन AB। समझ जाओगे मेरे ख्याल से। अब मान लो इसी केस में, फिगर पे मत जाना, ठीक है। मान लो मैं ये BG मान लो इधर पे, इस BG मेंबर का मुझको ILD बनाना है, ठीक है। ILD बनाना है मुझे BG मेंबर का। कैसे बनाऊँ, ये पिन जॉइंट है, ये रोलर है। क्या करोगे, ये B है, एक बार B पे यूनिट लोड लगाओगे और BG में फोर्स निकाल लोगे, मान लो कुछ X आ गया, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ फोर्स लगाओगे, उसके बाद एक फोर्स निकाल लोगे BG में, Y आ गया। सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे तुम प्लॉट कर लोगे, ये B है, ये G है। B पे मान लो कुछ X वैल्यू आ रही थी, और G पे मान लो कुछ Y वैल्यू आ रही थी। उसके बाद क्या करोगे, इन्हें स्ट्रेट लाइन से जोड़ दोगे, ये 0 रहेगा, इनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दोगे, और इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दोगे। ये हो गया तुम्हारा ILD ऑफ B। ये सिंपल तरीका है ट्रस का ILD बनाने का, ठीक है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, बाकी ये बहुत ज़्यादा ईजी है तो तुम कर लोगे। इसमें कुछ इस टाइप से तुम्हें दिया हुआ है ट्रस, सॉल्व पे नहीं करूँगा ज़्यादा, मैं हिंट कर दूँगा तुम्हें। कि ये पिन है, ये रोलर है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा एक नंबर है, इसको ऐसा कर लो, ठीक है। ऐसी कुछ तुम्हारी ट्रस है, तुमको CD मेंबर में का ILD तुमको बनाना है, ठीक। CD मेंबर का ILD तुमको बनाना है। चलो शुरू हो जाओ। ILD ऑफ CD हमको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर मैं ILD बनाऊंगा नीचे, ठीक है। इनको नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5 जॉइंट, 1 2 3 4 5। करना क्या होगा, मुझे 2 और 3 की ज़रूरत है बस मुझे। एक बार 2 पे यूनिट लोड लगाऊंगा, इसमें फोर्स निकाल लूँगा, एक बार 3 पे यूनिट लोड लगाऊंगा, इसमें फोर्स निकाल लूँगा, मेरा ILD तैयार हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। डिस्टेंस देख लो, ये डिस्टेंस सारे 6 मीटर्स हैं, ये भी 6 है, ये भी 6 है, 6 6, ठीक है, ठीक है। और ये वर्टिकल वाला भी 6 है। ये वाला एंगल जो है 45 डिग्री, सारे एंगल 45 डिग्री,
ठीक है। अब पहला केस है कि मैंने ये जो पॉइंट है 2, इस पे मैंने यूनिट लोड लगाया, ठीक है, मैंने 2 पे यूनिट लोड लगाया है। फिर से मैं ट्रस बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ मैंने यूनिट लोड लगाया है 1 का, और अब मैं इस CD मेंबर में फोर्स निकालना चाहता हूँ। तो तुम्हारे पास दो टेक्निक मैंने तुम्हें बताई थी ट्रस सॉल्व करने की। एक होती है मेथड ऑफ जॉइंट्स और एक होती है मेथड ऑफ सेक्शन, ठीक है। तो इसमें जॉइंट वाला लगाने की जगह तुम सेक्शन वाला यूज़ करो। इस सेक्शन पर ट्रस को काट लो, ठीक है, और मेंबर निकाल लो। तो पहले तुम मुझे रिएक्शन बता दो यहाँ पे कितनी आ जाएगी। ये वाली डिस्टेंस 6 है, ये 6 यानी 18 है, तो मेरे ख्याल से ये वाली आ जाएगी 18/24 और ये वाली आ जाएगी 6/24, ठीक है, समझ गए होगे। अब अगर तुम इस सेक्शन पे इसको काटोगे, ठीक है, इस सेक्शन पे इसको काटोगे तो मैं 2 हाफ इसके बना रहा हूँ, अलग अलग जो हो जाएंगे कुछ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये एक रिएक्शन है तुम्हारे पास 18/24, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है। तो यहाँ पर एक फोर्स आ रहा होगा जो मुझे निकालना है, ठीक है। इसको F1 कर लेते हैं, इसको F2 कर लेते हैं, इसको F3 कर लेते हैं, ठीक है। यही होगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं ये रेड वाला सेक्शन पे काटूंगा इसको तो, ठीक है। दूसरा हाफ भी बना लो, ठीक है, थोड़ी और स्पेस कर लेते हैं। दूसरा हाफ अगर बनाओगे तो दूसरा हाफ कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। और ये तुम्हारा यहाँ पे 6/24, ये तुम्हारा F1 है, ठीक है, ये वाला तुम्हारा F2 रहेगा और ये वाला तुम्हारा F3 रहेगा। अब कुछ ऐसा करो कि मैं सीधा सीधा जल्दी जल्दी F1 निकाल पाऊँ, ठीक है, F1 निकाल पाऊँ, कुछ ऐसा करो। एक तरीका है, तुम सिंपली ये वाले पार्ट का वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखो बस, ठीक है। वर्टिकल इक्विलिब्रियम अगर तुम देखोगे तो सीधा सीधा तुम्हें F1 मिल जाएगा। कैसे? मैं इसमें वर्टिकल इक्विलिब्रियम देख रहा हूँ, इसको रिजॉल्व कर लो F1 को, ये वाला हो जाएगा F1/√2, ये वाला भी हो जाएगा F1/√2, है ना। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ कि F1/√2 इज इक्वल टू, या रादर प्लस 18/24 इज इक्वल टू 0। भाई ये वाला पार्ट भी तो इक्विलिब्रियम में ही होगा, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ ये चीज़, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में लगा रहा हूँ, वर्टिकल फोर्स मेरे पास F1/√2 है और 18/24 है, तो दोनों का सम 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। तो मेरे ख्याल से मेरा F1 आ जाएगा 18/24 इंटू √2, ठीक है। 18/24 इंटू √2 तुम निकाल लेना, 0.35 आ जाएगा शायद, ठीक है। सिमिलरली मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, सेकेंड पार्ट में तुम्हें क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल गई 0.35, ठीक। सिमिलरली तुम क्या करना, ये सेकेंड थर्ड वाले जॉइंट पे यूनिट लोड लगाना और सिमिलरली तुम CD में फोर्स निकाल लेना। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.707। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसको तुम जोड़ देना स्ट्रेट लाइन से, इसको इससे, इसको इससे और इसको फाइनली इससे। ये तुम्हारा हो गया ILD फॉर मेंबर CD। इतना ही तुमको करना है, सेम प्रोसीजर है सारी ट्रेसेस में, बस कि तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन, ठीक है। ILD में बस इतना ही है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर है। थैंक यू।